फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले. वेलकम स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी SSC Standard 10th Maths Part 1, that means Algebras, 6th chapter Statistics. From that chapter we are going to study last topic, that is pie diagram. Now in pie diagram again two parts are there. First part is reading of pie diagram, but for this year only, yani for this 2021, this reading of pie diagram, that part is omitted. And second part is drawing a pie diagram, means some information will be given and we have to draw a pie diagram. So let us see how to draw the pie diagram from the given information. So this pie diagram is nothing but a method of presentation of a statistical data. जो statistical data दिया है, we can present that statistical data by table method. That means frequency distribution table, ungroup, group frequency distribution and cumulative frequency distribution table. ये तीन टाइप का टेबल्स हो गया. Second one, pictorial method. In pictorial method this pie diagram is there, and in graphical method that bar diagrams are also there in a pictorial method, and in graphical method histogram and frequency polygon. We studied that histogram and frequency polygon. Now let us see how to represent the data using this pictorial method, that is pie diagram. In a circle, with the help of sectors, you know, sector of a circle. Here if we observe this figure, we see this figure in geography textbook. Here this part is 29% land and 71% out of 100% on the earth surface. 71% water is there and 29% land is there. So how to show this information? Two things are given. So how to show this? By pie diagram. So this is the pie diagram. So this is example of pie diagram. Draw a circle and in that circle show the specific part by a sector. यानी ये land 29%, ये separate sector हो गया है this one, and ये larger sector, major sector, that is the water. So in this way we have to draw the pie diagram. Let us see how to draw a pie diagram. To draw a pie diagram, it is essential to find theta. तो थीटा फाइंड करने के लिए ना मेजर ऑफ सेक्टर, तो मेजर ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला है वो पहले लिखते हैं हम लोग. मेजर ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोअर्स, नंबर ऑफ स्कोअर्स इन गिवन कंपोनेंट divided by total of all scores multiplied by 360. So this is the formula. So if we consider one example from this practice set 6.6, then you will get idea how to draw a pie diagram. This is the important formula. ये formula अगर आपको पता है तो पहले जो टेबल दिया रहेगा, टेबल में कंपोनेंट यानी समझो मैथ्स साइंस ऐसा सब्जेक्ट दिया है, देन स्कोअर्स यानी मार्क्स वगैरह दिया है. यूजिंग दैट फाइंड थीटा फॉर ईच वन, उसके लिए टोटल हमें चाहिए. और मेजर ऑफ थीटा निकालने के बाद एक सर्कल ड्रॉ करो और सर्कल में शो द सेक्टर्स, दिस कंपोनेंट्स बाय सेक्टर्स, और हम लोग को पाई डायग्राम मिलेगा. नाउ लेट अस सी दैट practice set 6.6 directly, in which we have to draw the pie diagrams. Now let us see question number 1 from practice set 6.6. What is that question number 1? The age group and number of persons who donated blood in a blood donation camp is given below. Draw a pie diagram or show this information by pie diagram. So in this example, age group is given 20 to 25. These are not a classes. ये age group है. 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40. यहाँ पे कुछ देखना नहीं, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस. दीज आर एज ग्रुप्स. सो नंबर ऑफ पर्सन्स 80, 60. तो यहाँ पे एक कॉलम अगर नहीं दिया है तो ऐड करना है हमें. दैट कॉलम इज टोटल. ये टोटल किसका? ये नीचे जो स्कोर है इसको बोलते हैं स्कोर. ये कंपोनेंट हो गया.
25 to 20 to 25, 25 to 30, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट एंड दिस इज द स्क्वायर। तो इसका टोटल हमें यहाँ पे चाहिए 5 + 5 10, कैरी 1, 2 + 1 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20 यानी 200। सो दिस कंपोनेंट इज टोटल ऑफ ऑल स्कोर्स, इसको बोलते हैं 200। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द थीटास फॉर ईच एंड एवरी सेक्टर, ईच एंड एवरी कंपोनेंट के लिए थीटा पहले हम लोग को फाइंड करना है। तो यहां पे आप लोग एक कॉलम ऐड कर सकते हैं इसमें, थीटा, इसका थीटा इसके नीचे लिखो, इसका इसके नीचे लिखो। तो यहां पे हम लोग कर देते हैं, देखो एक कॉलम ऐड कर देते हैं यहां पे इनका थीटास, ये जो है तो आपको इजी जाएगा, और नहीं लिखा तो भी चलता है थीटा। सो थीटा हियर, इसके लिए इसके लिए इसके लिए थीटा फाइंड करते हैं एंड राइट दैट थीटा हियर, देन ड्रॉ द सर्कल एंड शो द इंफॉर्मेशन बाय सेक्टर। तो थीटा पहले कैसे फाइंड करते हैं, देखो एज ग्रुप 20 to 25, दिस इज द फर्स्ट एज ग्रुप। दिस एज ग्रुप के लिए फॉर दिस वन हाउ टू फाइंड थीटा, फॉर्मूला हम लोगों ने अभी अभी देखा, नंबर ऑफ स्कोर इन द गिवन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360। तो थीटा इज इक्वल टू 80 नंबर ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 360। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो गया। सो यार 2 1 जा 2 18 जा, सो 18 8 जा 144 डिग्री। तो ये हो गया 144 डिग्री। सेकेंड, फॉर एज ग्रुप 25 to 30, theta is equal to 60 divided by total 200 multiplied by this 360, 0 0 0 0 get cancel, 2 1 जा 2 18 जा, so 18 6 जा 108 डिग्री। तो सेकेंड कंपोनेंट हो गया डिग्री 108। थर्ड वन, थर्ड थीटा फॉर एज ग्रुप 30 to 35, here theta is equal to this 35 score divided by total of all score multiplied by 360। तो यहाँ पे 0 ये 0 कैंसिल हो गया, 2 10 जा एंड 2 18 जा, यहाँ पे 5 2 जा एंड 5 7 जा। सो here 2 1 जा एंड 2 9 जा, अगेन 9 7 जा 63 डिग्री। तो ये हो गया 63 डिग्री। और फोर्थ वन इज 25, तो एज ग्रुप है 35 to 40, कैलकुलेशन बराबर करना है हमें। थीटा इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 360। ये 0 ये 0 कैंसिल हो गया। पहले हम लोग 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 4 जा एंड 5 5 जा, 4 से 4 1 जा 4 9 जा, सो 9 5 जा 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री। ये टोटल 360 अपना आना चाहिए, यहाँ पे आता है वो टोटल। नाउ आफ्टर फाइंडिंग थीटास, थीटा अगर हम लोग को मिल गया, थीटा फाइंड करने के बाद आगे क्या करना है, यूजिंग द कंपास, सॉरी यूजिंग प्रोट्रैक्टर वी हैव टू ड्रॉ द सेक्टर्स। फर्स्ट ड्रॉ वन रेडियस हियर, एक रेडियस यहाँ पे ड्रॉ कर दो पहले, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन राइट हैंड साइड में, यहाँ पे एक रेडियस हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद यूजिंग दिस प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे रखो, देखो जो प्रोट्रैक्टर अपने पास है वो मेरे पास अभी ये अवेलेबल है, ये यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज 144 डिग्री, तो यहाँ से काउंट करो या यहाँ से काउंट करो, अगर ऐसा रखा है तो यहाँ से काउंट करते हैं 144। तो ये हो गया देखो 10 20, ये 130 140 और 144 यहाँ पे आ गया। तो 144 डिग्री, 144 डिग्री पे एक रेडियस हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। तो ये एज ग्रुप हो गया कौन सा, 20 to 25, यहाँ पे वो कंपोनेंट लिखना है 20 to 25। नो सेकेंड ग्रुप डिग्री थीटा इज 108 डिग्री। तो ये जो प्रोट्रैक्टर अभी कैसे पकड़ना है, ये रेडियस पे पकड़ा था, अभी ये रेडियस पे पकड़ो उसको, ये 0 बराबर से मैच करो, लाइन बराबर से मैच करो और 108 डिग्री काउंट करो। ये हो गया अपना 100 और यहाँ पे आ गया 108 डिग्री। तो 108 डिग्री पे एक और रेडियस हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। देन वी गेट द सेकंड सेक्टर। सेकंड सेक्टर इज फॉर एज ग्रुप 25 to
30 इतना स्टूडेंट था, 20 to 25 इतना हो गया, 25 to 30। आगे आगे चलते जाना है। ये प्रोट्रैक्टर अभी हम लोग ऐसा पकड़ेंगे, यहाँ पे देखो आगे आगे जाना है। सो हियर इट इज़ 63 डिग्री, 60 के बाद 3 लाइन देखो, ये हो गया 63 और फोर्थ वन नो नीड टू ड्रॉ, इट इज ऑटोमेटिकली 45 डिग्री। चेक करके देख सकते हो आप लोग, दैट रिमेनिंग इज 45 डिग्री। सो हियर दिस ग्रुप इज 30 to 35 and this group is 35 to 40. So in this way we get a pie diagram. In this pie diagram, this information is given in the table form, tabular form. We show this information using the sectors of a circle and this is called pie diagram. This diagram is known as, यानी ये सर्कल जो निकला है ये बोलते हैं pie diagram, इससे हम लोग कहते हैं pie diagram. This pie diagram, draw this pie diagram on your paper only, not on a graph paper. इसके लिए ग्राफ की जरूरत नहीं है। You can take the circle of any radius. एकदम छोटा भी मत लेना सर्कल, एकदम बड़ा भी मत लो। सो मीडियम साइज का सर्कल ड्रॉ करो। एकदम छोटा करोगे तो आपको यहाँ पे ये काउंटिंग में या इसमें गड़बड़ होगा थोड़ा, एकदम बड़ा करोगे तो भी रेडियस में गड़बड़ होगा। तो मीडियम साइज का जिसमें अपना प्रोट्रैक्टर है परफेक्टली बैठेगा और स्केल से आप लोग लाइन ड्रॉ कर सकोगे, इस टाइप का हम लोग को सर्कल लेना है। देयर इज नो लिमिट कि इतने ही सेंटीमीटर का सर्कल लेना है। अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या करते हैं 2.5 to 3 सेंटीमीटर रेडियस का अप्रोक्सीमेटली सर्कल ड्रॉ करते हैं। सो दैट इज द मीडियम साइज, एकदम बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं। So in this way we can draw the pie diagram. Now let us see the second example. The marks obtained by student in different subjects are shown. Draw a pie diagram. Subjects are given and marks are given. So here subject, your marks and third column is for measure of angle, that is theta. Theta के लिए हम लोग तीसरा कॉलम बनाते हैं यहाँ पे। So here marks English, Marathi, science. Subject are given English, Marathi, science, maths, social science, maths, social science and Hindi. And last का एक कॉलम ऐड करना है हमें total, because for theta this total is required. So here the marks are given 50, 70, 80, 50, 70, 80, 90, 60, 50, 90, 60 and 50. So first we have to find the total of all marks. तो सबसे पहले ये काम करना है कि ये टोटल का कॉलम हमें बनाना है। सो हियर 7 + 5 12, 12 + 8 20, 20 + 9 29, 29 + 6 35, 35 + 5 40, यानी 400 मार्क्स हो गया। सो फर्स्ट फाइंड थीटास फॉर ईच वन। ये थीटा हम लोग को फाइंड करना है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए थीटा कैसे मिलेगा? अभी थीटा इज इक्वल टू, यू नो द फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही लिखा है, नंबर ऑफ स्कोर इन द गिवन कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट बोलेंगे अभी, एंड दिस इज टोटल ऑफ ऑल स्कोर्स। सो थीटा मीन्स 50 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल स्कोर्स, कितना 400 मल्टीप्लाइड बाय 360। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। सो हियर 4 1 जा 4 9 जा 9 5 जा 45 डिग्री, ये पहला अपना आ गया 45 डिग्री फर्स्ट थीटा। सेकेंड थीटा इज फॉर सब्जेक्ट मराठी। मराठी के लिए थीटा का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। थीटा इज इक्वल टू हाउ मेनी मार्क्स 70 मार्क्स और टोटल कितना है 400 इंटू 360, ये फॉर्मूला हो गया है 0 0 0 0। सो 4 1 जा 4 9 जा सेम कैलकुलेशन है, 9 7 जा 63 डिग्री, ये सेकेंड हो गया। थर्ड वन फॉर साइंस, थीटा इज इक्वल टू मार्क्स इन साइंस 80, ये 63 यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 63 डिग्री, 80 डिवाइडेड बाय ये टोटल ऑफ ऑल स्कोर मल्टीप्लाइड बाय 360, सेम कैलकुलेशन रहेगा। 4 1 जा 4 9 जा 9 8 जा 72 डिग्री। तो थर्ड वन आ गया 72 डिग्री। ये टोटल हमेशा एवरी टाइम 360 डिग्री आना मांगता है, आना चाहिए, अदरवाइज आपका कहाँ पे तो रॉन्ग है ना। फोर्थ वन इज फॉर मैथ्स। मैथ्स के लिए देखते हैं, मैथ्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय दिस 400 मल्टीप्लाइड बाय 360,
तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 9 जा 9 9 जा 81 डिग्री। और फिफ्थ वन इज SS सोशल स्टडीज, यहाँ पे थीटा आएगा 60 डिवाइडेड बाय 400 एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस 360। So cancel this 0 0, this one this one this one this one, 4 1 जा 4 9 जा same, 9 6 जा 54 डिग्री, ये 54 डिग्री हो गया SS के लिए, ये हो गया 81 डिग्री। और लास्ट सब्जेक्ट इज हिंदी। फॉर हिंदी थीटा इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय दिस 400 एंड मल्टीप्लाइड बाय 360। तो ये 0 कट करो, 0 0 कट करो, 4 1 जा 4 9 जा 9 5 जा 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री। तो ये टोटल भी चेक कर लो, ये टोटल 360 आना चाहिए। देखो 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 4 40, 11 + 4 15, 15 + 5 20, ये हो गया 0 2, 4 + 2 6 + 5 11, 11 + 8 19, 19 + 7 26, 26 + 6 32 + 4 36, यानी 360 बराबर है। उसके बाद एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे। फॉर पाई डायग्राम ड्रॉ वन सर्कल आफ्टर गेटिंग दिस थीटास। थीटा आने के बाद एक सर्कल ड्रॉ करो, यहाँ पे एक रेडियस हॉरिजॉन्टल एक ड्रॉ कर दो एंड देन यूजिंग द प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर से अभी हमें थीटा यहाँ पे शो करना है मेजरमेंट ले लेके। सो फर्स्ट वन थीटा इज 45 डिग्री, तो 40 के बाद 5 का जो लाइन रहेगा यहाँ पे 45 एक एक करने के बाद वो रेडियस कंप्लीट करो, बिकॉज दैट रेडियस इज द बेस फॉर दैट वन। नेक्स्ट सेक्टर के लिए वो रेडियस हम लोग यूज करने वाले हैं, इसलिए सभी डॉट करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा नहीं चलता है। सो हियर दिस इज फॉर इंग्लिश, दिस सेक्टर इज फॉर इंग्लिश, ये सेक्टर हो गया। यहाँ पे हम लोग मेजर भी लिख सकते हैं 45 डिग्री या ओनली नेम। नाउ नेक्स्ट वन इज 63 डिग्री, यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने मराठी, तो ये प्रोट्रैक्टर आगे आगे ऐसे बढ़ाते जाना है। देन 63, 60 के बाद 3 लाइन 63, हियर वी गेट 63। नाउ ड्रॉ अ लाइन, ये रेडियस ड्रॉ कर दो, वी गेट दिस सेकेंड सेक्टर इज फॉर मराठी। देन थर्ड वन इज 72 डिग्री, तो यहाँ पे रखो और मेजर करो वापिस 72 डिग्री। 70 के बाद 2 लाइन बराबर से मेजर करना है, यहाँ पे गलती मत करो। सो हियर इट इज 72 डिग्री, दिस इज साइंस। ये हो गया अपना 63 डिग्री, 72 डिग्री। नेक्स्ट वन देखो प्रोट्रैक्टर कैसे पकड़ते जाना है, याद रखना है। नेक्स्ट इज 81 डिग्री, तो 80 के बाद 1, 81 डिग्री एंड ड्रॉ अ लाइन, दिस इज फॉर मैथ्स। हियर 81 डिग्री एंड दिस नेक्स्ट वन SS, दिस इज 54 डिग्री, यहां से ऐसा रखो प्रोट्रैक्टर 54 डिग्री, 50 + 4, here we get 54 degree and last one no need to measure because it is the remaining part one is for Hindi, जो बाकी रहेगा बचा हुआ that is for Hindi, ये हिंदी हो गया। तो यहाँ पे SS and यहाँ पे हिंदी, here this is 54 degree और ये 45 degree. So we get the pie diagram. This diagram is known as pie diagram. So in this way, this information which is given in the form of table, marks of student out of total is 400. Out of 100 marks are there. So this information is shown by a pie diagram. Let us see one more example from practice set 6.6. Last sum, fourth sum, because remaining sums are omitted 5 and 6. So in fourth sum, what is given? Fruits. The following table shows the percentages of demands for different fruits registered with fruit vendor. Show the information by pie diagram. Fruits, name of the fruits are there. Then this is percentage and here theta. Third column is for theta. So here mango, sweet lime, apples. This is mango, sweet lime,
एप्पल्स, चीकू, ऑरेंजेस, चीकू and oranges, and here total. So here how many percent? 30%, all are percentage. 30, 15, 25, 20, 10. You know, whenever percentage, their total is always 100. You got 100%. तो सबके लिए थीटा हमें पहले निकालना पड़ेगा. Find theta for each sector, each component. So first one is mango. उसके लिए थीटा निकालते हैं. देखो, मैंगो थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है अपने पास, नंबर ऑफ स्कोर इन द गिवन कंपोनेंट, दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल कंपोनेंट, 100% मल्टीप्लाइड बाय दिस 360. तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो. सो 36 3 जा 108 डिग्री. तो यहाँ पे हो गया 108 डिग्री. सेकेंड वन इज स्वीट लाइम. स्वीट लाइम थीटा इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 360. तो ये जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया. 5 से 5 2 जा 5 3 जा, और यहाँ पे 2 से 2 1 जा 2 18 जा. सो 18 3 जा 54 डिग्री. ये सेकेंड कंपोनेंट हो गया 54 डिग्री मेजर ऑफ एंगल थीटा. थर्ड वन इज फॉर एप्पल्स. थीटा इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 360. 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 9 जा और 0 90 डिग्री. सो हियर इट इज 90 डिग्री. फोर्थ वन इज चीकू. सो हियर चीकू के लिए tan थीटा इज इक्वल टू 10% डिवाइडेड बाय 100% मल्टीप्लाइड बाय 360. ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसल. सो 36 डिग्री. एंड लास्ट वन इज फॉर ऑरेंजेस. थीटा इज 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 360. ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, जीरो गेट कैंसल. 36 डिग्री. सॉरी, चीकू के लिए 20 है यहाँ पे, सॉरी 20. तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया. तो 36 2 जा 72 डिग्री. सो इन दिस वे वी गेट थीटास. ये एप्पल्स के लिए थीटा आया 90 डिग्री, चीकूस के लिए आया 72 डिग्री और इसके लिए आया 36 डिग्री. ये टोटल हो गया 360 डिग्री. नाउ शो दिस इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सेक्टर्स. यहाँ पे पहले एक रेडियस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. उसके बाद यूजिंग द प्रोट्रैक्टर लो. पहला 108 डिग्री मेजर करो, यहाँ पे रखो. 100 के बाद 8 लाइन्स. सो वी गेट 100 और यहाँ पे आएगा अपना 108. सो 108 डिग्री. वापिस एक रेडियस ड्रॉ कर दो. दिस पार्ट शोज मैंगोज. सो राइट हियर मैंगो एंड थीटा इज 108 डिग्री. बोथ वी कैन राइट. नेक्स्ट कंपोनेंट इज 54 डिग्री. तो 54 डिग्री मेजर करो. 50 के बाद 4 लाइन. तो 54 डिग्री हो गया यहाँ पे. इसको कंप्लीट कर दो. ये सेकंड सेक्टर हमें मिला. दिस इज 54 डिग्री. दैट इज स्वीट लाइम. ये हो गया स्वीट लाइम. This is 54 degree. Now third component is 90 degree. So measure 90 degree. यहाँ पे 90 डिग्री मेजर करना है. 90 डिग्री देखो, ये हो गया 90 डिग्री. यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ कर दो. So this is for apples 90 डिग्री. यहाँ से हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज 72 डिग्री. तो प्रोट्रैक्टर कैसे रखना है बराबर याद रखो. ये ऐसा रखो. 70 के बाद 2 लाइन्स वी गेट 72 डिग्री एंड रिमेनिंग इज 36 डिग्री. नो नीड टू मेजर दैट. रिमेनिंग आप चेक कर सकते हो बचा हुआ बराबर है या नहीं. तो ये हो गया अपना चीकू और ये ऑरेंजेस. ये 36 डिग्री और ये 72
degree. So in this way we can draw a pi diagram in this practice set 6.6. So friends, here this practice set 6.6 and the whole chapter statistics is completed. If you have any doubt, then you can write in a comment box. I will definitely clear your doubt. And if you like the video, please press the like button and don't forget to subscribe the channel to get the upcoming videos, and share these videos to your friends. Thank you.